Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So today we are standing at second video of Unit 5, where we'll be covering about the second topic of data visualization part, that is comparison of various type of plots that we have done, including line graphs and multiple line graphs, and we'll also cover the topic of bar charts today. Also to mention, I have already posted the practice question of this topic, because since I was searching for the questions, I felt like that was something पहले ही share कर देना चाहिए, so that's why I shared it. You must practice this question तो ताकि आपके concept strong हो जाए, ठीक है. तो let's start with today's video, and उससे पहले if you haven't subscribed to the channel yet, do subscribe it, and if you understand concepts then do like it and comment down below if you have any doubts, and share it with your friends also, ठीक है. तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो हमने आर जब स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स, वेरी बेसिक पार्ट. Then we move towards the constants part, that we move to the data structures जिसमें we did vectors, matrices, lists and data frames. Then we move towards central tendency, and we did central tendency का basic portion. Then we move towards packages and libraries, and then the dispersion measures, and after that we did conditional statements and the advanced central tendency as well. उसके बाद recently in recent video of unit 5 that I posted, the first one was the data visualization part, where we did about the line graphs and multiple line graphs. Okay, so let's start with today's video about the comparison of plots and the bar charts. सबसे पहले I'll talk about the comparison of plots, various plots. So comparison of plots is basically what we are doing is basically comparing the data of two simultaneous, for example days or weeks or year, so that we can compare it, first what was the status on the first day and the other day, or the first week or the other week, or the first year, any variable you are choosing. So basic objective is to do the comparison between these two variables, right? So let's start. सबसे पहले for example I take the example of जिसके साथ we'll work. So we'll work with data of 2 days, where we'll check about the अपना age and the speed of car. So let's make the data set. So firstly, x coordinate I'll make as x1. We'll concatenate and enter any random values between 1 to 10, and 10 values should be there. So let's add 4, 5, 7, 8, 2, 3, 1, 9. Are they 3, 3, 6 and 3, 9 है. Leave it as 0. Control enter, and x1 is created. Now we'll create y1 as concatenate and random values only. 5, 2, 3, 4, 7, 5, 6, and yes, you can repeat it, there is no problem with that. 3, 6, 2, 4, 6, 8 are there. 5, 3. Okay, run it, and your two variables are created. Now we'll plot these two coordinates, not variables, coordinates को will plot on plot का function as x1 comma y1, and heading will keep as main का, will give heading as observation of marks, या ऑब्जर्वेशन ही रख लो, बिकॉज वी आर डूइंग विद कार्स, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्स लिख लो, मार्क्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, दैट्स अप टू यू. ऑब्जर्वेशन लिख रही हूँ मैं. उसके बाद वी गिव लेबल्स टू आर एक्स एक्सिस एज एक्स लैब इज इक्वल टू नंबर, एंड वाई लैब इज इक्वल टू आर, keep it as value. Okay, then give the color as कोई भी random color दे दो आप, give it as red. Then cx data point का size, keep it as 2 units, and press Ctrl enter. Again it varies, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 it is left. Okay, 6.
नाउ यू कैन सी द पॉइंट्स ओवर हेयर. उसने कैसे मार्क किया है, 4,5 4,5 उसने यहाँ मार्क कर दिया. ऐसे ही उसने सारे मार्क करे. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, कंपैरिजन डेटा दिखाना है ऑन अ सिंगल प्लॉट. ठीक है. तो वी आर कंपेयरिंग 2 डेज़ का डेटा. तो हमने फर्स्ट डे का डेटा तो लिख लिया. सेकेंड डे के डेटा को हम फिर से हम न्यू डेटा के साथ बनाएंगे. फिर हम तो कंपैरिजन के लिए भी यूज़ द फंक्शन, मतलब सेकेंड डेटा इनपुट करने के लिए भी यूज़ द फंक्शन ऑफ पॉइंट्स. तो वो पहले तो वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं x2 और y2. उसके बाद विल मूव टूवर्ड्स पॉइंट्स एंड देन यू कैन सी कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे उसमें. तो x2 पहले विल क्रिएट कोई भी रैंडम नंबर्स ही ले लो. मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ इसलिए आई एम टेकिंग रैंडम वैल्यूज़. अगर क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन दिया होगा तो वो लिख लेना. 1 2 3 4 5 6 7 4 and 3 are 7 now. I guess these are 10. Yes. And y2 as ये भी हमारी 10 वैल्यूज़ आ गई. अब हमने क्या करना है, हमें ये वाला डेटा दोनों कोऑर्डिनेट्स और ये वाला दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें एक ही प्लॉट पे दिखाना है ना. कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे. तो उसके लिए वी यूज़ द पॉइंट्स फंक्शन. मतलब हमारा जो ऑलरेडी प्लॉट बन रखा है, जो हमने ये प्लॉट बनाया है, इसके अंदर ही हमने और डेटा को ऐड करना है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें. तो वी यूज़ पॉइंट्स फंक्शन ताकि इसमें डेटा ऐड हो जाए. पॉइंट्स यूज़ करेंगे एंड वी पुट. हमने कौन सा डेटा करना है, सेकेंड वाला डेटा करना है. तो x2 y2 और कलर दे दो, डिफरेंट कलर दे देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकें. लेट्स गिव इट एज ग्रीन एंड डेटा पॉइंट का साइज दे दो एज 2. रन इट. नाउ यू कैन सी उसने डेटा प्लॉट कर दिया. नाउ यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है. ठीक है. और अगर आपको ये डेटा मतलब इसके पॉइंट्स चेंज करना है तो इसको भी आप PCH का फंक्शन, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप वो देख के भी कर सकते हो. 3 देख लेते हैं, 3 से क्या रन होता है. प्लस आगे ये भी हम ट्रायंगल दे देते हैं, यहाँ PCH2 दे देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें. देखो बन गया ना. तो अगर किसी ने वैल्यू मतलब वो निकालना है, इंटरप्रिटेशन, वो निकाल सकता है कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा वैल्यू कहाँ जा रहा है. तो वो इंटरप्रिटेशन का पार्ट है. ठीक है. तो हमारा ये हो गया. और अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे कल ही डाल दिया था. कल ड्यू टू सम रीज़न मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो. सॉरी फॉर दैट. थोड़ा रीज़न था तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई. पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं. Now we'll move towards the next topic, that is bar charts. ठीक है. तो बार चार्ट इज़ बेसिकली वही हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स, हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं जिससे वी सी दी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा एंड उसके लिए वी यूज़ दी बार चार्ट्स. पता ही है आपको, बेसिक होता है बार चार्ट्स. तो उसके लिए वी यूज़ द फंक्शन कॉल्ड बार प्लॉट इन आर. और उसके पहले हमें चाहिए डेटा. तो डेटा के लिए वील क्रिएट वेक्टर नेम एज x, गिव concatenate and x is our this reason. तो बार चार्ट में नीचे इज जैसे अगर इफ़ यू आर गिविंग मार्क्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो नीचे सब्जेक्ट्स आएंगे, साइड पे मार्क्स आएंगे. मतलब y एक्सिस पे मार्क्स आएंगे, x एक्सिस पे लिखा होगा कि इंग्लिश में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, ऐसे ऐसे. तो x एक्सिस इज इन बार चार्ट इज जनरली रिटन एज स्ट्रिंग्स वेरिएबल एंड y एक्सिस में वी पुट एज वैल्यूज़. तो इसमें वी पुट x एक्सिस में स्ट्रिंग वेरिएबल एज a b c d. I think four are enough. And we create a y variable, y vector as values, random values 6 8 2 4. Run it. And now we'll use the function called bar plot. एंड सबसे पहले वी गिव दी हाइट्स. हाइट्स मतलब y एक्सिस का डेटा.
मतलब वैल्यूज़ देनी है, हमने वैल्यूज़ को प्लॉट करना है तो वैल्यूज़ देते हैं। वैल्यूज़ हमारे y में है, y वेक्टर में है, तो वी गिव द रेफरेंस ऑफ y। देन वी यूज़ द फंक्शन नेम एज नेम्स डॉट arg, मतलब नेम्स का आर्ग्यूमेंट देना है उसको, दैट जो हमारे नीचे नेम्स आएंगे हाइट के, वो क्या होंगे, वो हमने ऑलरेडी वेक्टर बना लिया है, तो विल गिव द रेफरेंस एज x। इसमें आप कंकैटिनेट करके अलग से भी लिख सकते हो, आप पहले वेक्टर बना के करना वैसे भी कर सकते हो, नो दिक्कत। नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर, लेट्स सी द आउटपुट। तो इसमें आप देख सकते हैं उसने हमारे ABC को बार पे प्लॉट कर दिया, बट दिस इज़ सो रॉ, बहुत ही बेसिक सा लग रहा है कि हमने बस बना दिया। इसकी थोड़ी सी एस्थेटिक्स इंप्रूव करने के लिए वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स एंड विड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी एंड ऑल। सो वो हम एक एक करके ऐड करते जाते हैं इसमें, ताकि हमारा बार ग्राफ देखने के लिए, मतलब विजुअलाइजेशन हम सीख रहे हैं तो विजुअलाइजेशन में वो बेटर लगे और उसके अंदर हम इंटरप्रिटेशन के लिए भी अच्छे से उसको यूज़ कर सकें। तो हेडिंग दे देंगे सबसे पहले, तो विच इज़ वेरी बेसिक, मेन करके वी गिव द हेडिंग एज फॉर एग्जाम्पल डेटा प्लॉट and give it color as we'll give violet and press control enter. Now you can see heading आ गई है, हमारे बार्स के कलर्स आ गए। अब अगर आपने इसकी बार्स की विड्थ करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट गिव द आर्ग्यूमेंट एज विड्थ, एंड क्योंकि हमारे 4 बार्स हैं तो हम चारों की विड्थ देंगे, चारों के लिए विड्थ देंगे, आई मीन मैं रैंडम ले रही हूँ, कंट्रोल एंटर। नाउ यू कैन सी विड्थ उसने अपने हिसाब से 1 2 3 4 यूनिट्स के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। सेम भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि बाहर का तो हम विड्थ सेम ही रखते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन दैट वी यूज़ इज़ डेंसिटी। इसी में मैं बता देती हूँ, वी गिव डेंसिटी, डायरेक्ट लिखेंगे, एंड डेंसिटीज़ जो ये आपको कलर आ रहा है बार्स के अंदर, इसका कंट्रास्ट एंड ऑल कितना ज़्यादा दिखे। तो लेट्स से 10 रख लेते हैं, तो यू कैन से सी वो कितना कम हो गया और लाइंस आ गई हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इफ़ यू गिव डिफरेंट कलर और सॉरी डिफरेंट नंबर, लेट्स सी क्या चेंज होता है। तो वो डेंसिटी का ये कलर्स, मतलब विड्थ इसका देख सकते हैं, जो अंदर लाइंस आ रही है ना, इसकी डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कर लिया डेंसिटी फंक्शन हो गया, विच डिसाइड्स द एरिया टू बी कवर्ड विद द कलर्स चोजन इन द बार्स। और लास्ट में वन मोर पार्ट इज़ दैट कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आर चूजेज वर्टिकल bars for plotting the bar graphs, but if you need you can always change the vertical graphs into horizontal ones by just putting the argument as horiz horiz with true, and you'll run it and horizontal graphs आपके दिख जाएंगे, ठीक है। मैं width हटा देती हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। और function runs well. Now you can see उसने हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा बार चार्ट्स का भी टॉपिक ओवर। बस एक चीज़, अब आप लास्ट चीज़ इंस्टॉल कर लो, पैकेज ggplot पैकेज है, वो इंस्टॉल करो। उसका यूसेज जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। पहले विल गिव द कमांड इंस्टॉल डॉट पैकेजेस एंड पैकेज का नेम इज़ ggplot2। प्रेस कंट्रोल एंटर, वो इंस्टॉल हो जाएगा। I think it is already downloaded in my system. Yeah, it got downloaded, अनपैक हो चुके हैं। उसके रिलेटेड जितने भी होते हैं वो अपने आप ही इंस्टॉल कर लेता है। ये जो सारे पैकेजेस है इसने खुद ही इंस्टॉल किए, तब जाके ggplot इंस्टॉल हुआ, मतलब उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो उसने खुद ही कर दिया। तो 5 to 10 सेकेंड में यू विल गेट इंस्टॉल्ड। उसके बाद कॉलिंग हम नेक्स्ट में करेंगे, बिकॉज हमें नेक्स्ट वीडियो में कॉल करके उसको यूज़ करना। अभी कॉल नहीं करेंगे, इंस्टॉल करके यू कीप इट। बस इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि वी यूज़ दिस पैकेज ggplot टू, सो दैट वी आर
डेटा विजुअलाइजेशन जो भी हम कर रहे हैं दैट इज़ ईजी टू स्टाइल एंड वी कैन ऐड टाइटल्स, चेंज द थीम्स एंड इवन प्लॉट मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ डेटा. सिंपल इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ लाइक कि बेसिक जो आर है, बेस आर जो हम अभी बार प्लॉट और लाइन प्लॉट के लिए जो फंक्शंस यूज़ कर रहे थे दैट इज़ लाइक अ स्केच बुक, मतलब क्विकली हम भी डूडल कर सकते हैं. बट जी प्लॉट इज़ समथिंग लाइक कॉल्ड फोटोशॉप. फोटोशॉप में क्या होता है, हम प्रोफेशनली सब कुछ करते हैं. आता तो हमें भी है बेसिक एडिटिंग करना और वीडियो बनाना और ये सब कुछ, बट जो प्रोफेशनल होते हैं तो वे दे यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर दैट. सो इट इतना ही डिफरेंस है बिटवीन बेसिक आर एंड बेसिक आर के फंक्शंस एंड जी प्लॉट. इट मेक्स इट क्वाइट अपीलिंग टू आइज एंड विजुअलाइजेशन में बेटर लगता है. ठीक है. सो ये हमने जो फंक्शन सारे सीखे हैं ये सारे ऑलरेडी जी प्लॉट में बिल्ट इन होते हैं, तो इसकी वजह से एस्थेटिक्स और जो सब कुछ है उसका हम डिफाइन करके आर को कमांड दे सकते हैं एंड बाकी जो भी काम है वो आर खुद करेगा. सो दिस वी विल यूज़ इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक जितना भी वी डिड. एंड like the video if you did understand, comment down below if you have any doubts, and subscribe to the channel so that you don't miss out on any video, and share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.